Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss mainly about the element, compound, mixture, physical and the chemical change. But before going today's lecture, we will take a brief introduction again about the matter, or you can say the substance. Now, what is a matter? Anything which is present around us, which has a mass, which can occupy space, which can be felt, is called a matter. Means solid, liquid, gas, anything which is present around, which is in the form of the solid, in the form of the liquid, in the form of the gas. As the colorless gas, we can only feel these gases which are present in our surrounding, in our environment. That is also the matter. Now the physical classification of the matter. Physical classification of the matter includes about the state of the matter. The states of the matter are, जैसे अभी हमने आपको डिस्कस किया, the state of the matter are the solid, liquid or the gas. That is the physical classification of the matter. In the next unit, we will discuss about the solid, liquid and the gas in detail. Now the chemical classification of the matter. According to the chemical classification of the matter may be the pure substance, the matter may be the impure substance. Impure substance is generally called as the mixture. आप उन्हें mixture कहते हैं. Now, what are the pure substances? Pure substances are those substances which have the definite composition. Which have the definite composition are called as the pure substances. Definite composition means whatever the element, जो भी हम आगे देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनके अंदर फिक्स्ड हमें पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, किस रेशियो में प्रेजेंट हैं. सो दैट इज द प्योर सब्सटेंस. सो द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द डेफिनेट कंपोजिशन आर कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंसेस, and the substances which do not have the definite composition will be the impure substances or the mixture. Now the types of the pure substances. The substances, the pure substances may be the element, वो आपके element भी हो सकते हैं. Now what is the element? और वो आपके compound भी हो सकते हैं. Now what is the element? Element कौन है? The element are those substances which can neither be broken into the simpler substances, as we already discussed, an element of an atom of an element contains the nuclear part, the central part, that is the nuclear part, and around it there are the circular path in which the electron revolves. That is the structure of an atom, and that atom contains the electrons in the extranuclear part and contains the protons, the neutrons in the nuclear part, that is the nucleus, as we already discussed in the previous lecture. But that particular element or the atom of the element cannot be broken into the simpler substances. हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो ये एटम है आप इसको क्लीव कर दें, ऐसे क्लीव कर दें बीच से, और इसके अंदर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप सेपरेट कर पाए. इसको फर्दर आप और ब्रेक नहीं कर सकते इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द डेफिनेशन कि द सब्सटेंस व्हिच नीदर can be broken into the simpler substances nor can be formed from the simpler substances by the simple methods. आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप मिला के और आप क्या प्रिपेयर कर दें, एक एटम को प्रिपेयर कर दें, एटम ऑफ द एलिमेंट को आप प्रिपेयर कर दें. आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करेंगे. क्लियर हो गया बेटा? तो कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस which can neither be broken into the simpler substances nor they can be formed from the simpler substances by the simple methods, is called the element. आप उसे बेटा element कहते हैं. Now the example are, as we already know, till date we have almost the 118 elements which is present in the periodic table. जो periodic table है उसके अंदर 118 elements हैं. Out of these 118 elements, the elements whose atomic number is up to 92, they are the natural, except one, that is the technetium, whose atomic number is 43, that is synthetic element. आपका एक ही एलिमेंट ऐसा है एटॉमिक नंबर 1 से लेके और 92 तक आपके सभी के सभी नेचुरल एलिमेंट है. सिर्फ एक को छोड़ के एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 43 है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. अदर एलिमेंट्स लाइक जिसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम. बेटा आपको ये याद रखने, अप टू द 30 तक तो आप जरूर याद करें. बताओ बेटा कौन कौन है?
हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 2, उसके बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, 9 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन, क्योंकि इनके बेस बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नियोन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम, 20 कैल्शियम। तो बेटा ऐसे आपको याद रखने होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। उसके बाद 21 से 30 जो एलिमेंट है उसको आप, इसके बेटा याद रखने के कुछ तरीके भी हैं, उसके लिए तो हमने आपको अलग से एक लेक्चर दिया था, उसके अंदर आपको सिखा रखा है व्हाट आर द डिफरेंट सिंपल वेज टू लर्न दीज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उनको याद रखने के तरीके क्या हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। तो कुछ एक एग्जांपल बेटा हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमने हेफरजेड मैनर में आगे पीछे करके यहाँ पे लिख दिया था। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट बेटा आपसे एग्जाम में पूछे, द सब्सटेंस व्हिच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस लाइक द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपके एटम ऑफ द एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन आप उसको फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते उन सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखना है। और ना ही आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को मिला के वो चीज प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि सर ये कुछ बात एक बार आप एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटॉमिक नंबर बेटा हमने पढ़ा था कार्बन का 6 है, और 12 बेटा उसका मास नंबर होता है। हमने बताया था ना, जो आपके सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। देखो बेटा ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। जो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखे हैं दैट इज द मास नंबर। देखो बेटा ये मास नंबर होता है। यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर किसके इक्वल था बेटा, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। What it means कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेटा कार्बन में कितने हो गए, दैट दीज आर 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा कितने हो गए कार्बन के अंदर, दीज आर आल्सो 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। और मास नंबर बेटा कितना हो जाएगा, मास नंबर टोटल तो 12 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, तो बेटा न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी 6 हो गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था इस डेफिनेशन का, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये सोचे कि कार्बन के अंदर तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं, उनको मिला देते हैं, और उनको मिलाने से जो नई चीज बनेगी वो कार्बन एटम बन जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यही तो हमने लिखा था कि नोर दे कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपलर मेथड्स। आप इनको बना भी नहीं सकते सिंपल मेथड से। ना ही आप ऐसा कर सकते कि कार्बन आपने लिया और कार्बन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद आपने क्या कहा, नाउ वी हैव सेपरेटली द 6 न्यूट्रॉन, वी हैव सेपरेटली द 6 प्रोटॉन, वी हैव सेपरेटली द 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट के द सब्सटेंस। For example, here the carbon is a element. It can neither be broken into the simpler substance like the 6 protons, 6 neutrons, 6 electron में हम इसको break नहीं कर सकते, nor it can be formed from the simpler substances by simple method। ना ही हम इस कार्बन को बना सकते 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके। क्लियर बेटा, तो ये थी डेफिनेशन, ये थी इसकी सेंस, और ये एग्जांपल हमने बताया आपको। नाउ द टाइप ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट है वो डिफरेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज देयर आर द सम एलिमेंट व्हिच आर द मेटल, देयर आर सम अदर एलिमेंट व्हिच आर द नॉन मेटल, देयर आर सम अदर एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द मेटलाइट्स। तो आपके मेटलाइट भी होते हैं या आप उन्हें सेमी मेटल्स कह देते हैं। तो आपके जो मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आप देखेंगे वो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके मिलते हैं। और जो ये मेटेलिक कैरेक्टर है, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर आप बॉटम की तरफ जाते हैं, बॉटम ऊपर से नीचे, तो मेटेलिक कैरेक्टर बेटा आपका इंक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल मिलते कहाँ पे हैं। और आपके जो नॉन मेटल है बेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, वो आपके राइट हैंड साइड के अंदर होते हैं। और ये किसी भी ग्रुप के अंदर जब आप देखते हैं दे आर जनरली बीन प्रेजेंट, अगर राइट हैंड साइड में भी हैं तो वो टॉप के अंदर ही होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे आप उस ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे तो वो उस जो नीचे जो एलिमेंट होंगे उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप
आपका कम होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक बाउंड्री लाइन है पीरियोडिक टेबल में हमने शो की थी कि वो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, दीज कॉल्ड द मेटलाइट्स। सो द एलिमेंट व्हिच प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन मेटल एंड द नॉन मेटल, दे आर द मेटलाइट्स। बेटा आपने ये पढ़ा होगा ना कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर। जो आपके होम्स अप्लायंसेस होते हैं, वायर्स होती है उसके अंदर जो कॉपर वायर जो हम यूज करते हैं, सिल्वर आपका गुड कंडक्टर है, कॉपर आपका गुड कंडक्टर है। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स आपके गुड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल होते हैं लाइक द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की रोड आपने देखी होगी ना, घर में जो सेल होता है, ड्राई सेल जो आप यूज करते हैं, जब कभी वो खराब हो जाता है तो अब जब छोटे, हम भी छोटे थे तब हम उससे खेलते थे, हम उसको ब्रेक कर देते थे, तो अंदर एक कार्बन ब्लैक रोड निकलती थी, दैट इज रोड ऑफ ग्रेफाइट रोड। वो गुड कंडक्टर होती है। वो क्या होती है बेटा? गुड कंडक्टर। ऐसे ही बेटा आपका एक ब्लैक फास्फोरस होता है, वो भी एक गुड कंडक्टर होता है। दोनों नॉन मेटल है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कार्बन, कार्बन इज ए नॉन मेटल, लेकिन कार्बन कई फॉर्म में मिलता है बेटा नेचर के अंदर। कई फॉर्म होती है कार्बन की। कार्बन में बी प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट, कार्बन में बी प्रेजेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड। हीरे का नाम सुने ना आपने, डायमंड, वो क्या है? वो भी बेटा कार्बन ही है। तो मींस कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, देयर आर सम एलिमेंट व्हिच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जो एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो वो जो फॉर्म है उनकी, दीज कॉल्ड द एलोट्रोपिक फॉर्म, और उस प्रॉपर्टी को बेटा एलोट्रोपी कहते हैं। कहने का मतलब कि देयर आर सम एलिमेंट इन द नेचर व्हिच शोज दैट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज द एलोट्रोपी। एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है। एलोट्रोपी की सेंस क्या है? एलोट्रोपी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट to exist in more than one form. For example, carbon exists in the form of the graphite, carbon exists in the form of the diamond, carbon exists in the form of the fullerenes. तो these are the different form of the carbon. Clear हो गया बेटा? ऐसे phosphorus, phosphorus exists in the form of white phosphorus, phosphorus exists in the form of black phosphorus, phosphorus exists in the form of the red phosphorus. तो these are the different forms of the element, और उन डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं, और प्रॉपर्टी बेटा एलोट्रोपी कहलाती है। तो ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अब हम लेते हैं जो हमने पीछे भी बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन को बेटा हमने किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? सी से। सो दैट इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। तो हर एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं किसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल द कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, एंड सो ऑन। तो next term is the symbol. So the representation of an atom, representation of an atom of an element is called its symbol. वो उसका symbol कहलाता है. For example, the symbol of hydrogen is H, the symbol of carbon is C, the symbol of nitrogen is N, the symbol of iron is Fe, the symbol of gold is Au, the symbol of silver is Ag, the symbol of copper is Cu, the symbol of the zinc is Zn, and so on. हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है. सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. तो बेटा ये जितने सिंबल होते हैं ये हमें ध्यान रखने पड़ते हैं. क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है व्हाट आर द कंपाउंड्स. तो एलिमेंट और कंपाउंड में यही तो इसकी डेफिनेशन के बेस डिफरेंस आ जाता है कि द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट. मींस जो एटम ऑफ द एलिमेंट है, एटम ऑफ दी जो डिफरेंट एलिमेंट है, जब आप उनको कंबाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने H और O को कंबाइन कर दिया, तो H और O के कंबाइन करने से बेटा क्या बना? जब आपने H और O को कंबाइन करते हैं, H प्लस O, तो इनको कंबाइन करने से आपका देखो क्या बन सकता हो सकता है बेटा वाटर बन जाए, हो सकता है इनके कंबाइन करने से कोई और कंपाउंड, फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाए. तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो सब्सटेंस बना है, इसे आप कंपाउंड कहते हैं. क्यों कंपाउंड कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा फिक्स्ड रेशियो है इनके बीच. आपने देखा ना बेटा ध्यान से, वाटर के अंदर 1 ही ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर 2 ही ऑक्सीजन है, तो रेशियो फिक्स है 2:1. H2O2 जब बना तो बेटा 2 इसमें H होंगे और 2 ही बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन होंगे. 2:2 है बेटा. दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम. लेकिन बाय वेट भी आप इनकी रेशियो देख सकते हैं. सो दैट विल बी द सिंपल रेशियो. तो मींस द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हियर द H and the O atom, these are the different atom which are going to combine, which are going to bonded, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे आपस में. और कैसे बॉन्ड बनाएंगे बेटा? इन द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट. फिक्स्ड रेशियो के अंदर ही जुड़ेंगे. 2H और एक O जुड़े तो उसे आप वाटर ही कहेंगे. 2H और 2O ही जुड़े तो आप उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही कहेंगे. क्लियर हो गया बेटा? ऐसा नहीं कि 2H और 2O जुड़ गए आपके H2O2 बन गया, इसे भी आप वाटर कह देंगे. नो. तो मींस H2O is a compound, H2O2 is a compound.
फॉर एग्जाम्पल CO2 बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, C+O आपके कंबाइन कर गए बेटा, और क्या बना, हो सकता है CO बन जाए, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो एक पॉइजनस गैस होती है, आपने देखा होगा जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। आपने देखा ना बेटा, आप किसी भी चीज को बर्न करें, एनीथिंग, आप वुड को बर्न करें, आपके व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल होता है, जो ब्लैक ब्लैक फ्यूम्स, ब्लैक ब्लैक धुआं दिखता है बाहर से, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके अंदर, काला धुआं जो जलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, तो CO बन गया। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाए बेटा इसके साथ, तो CO2 भी बन सकती है। अगर 2 ऑक्सीजन मिल जाती तो CO2। तो यानी आपने क्या देखा, आप इसको क्यों कंपाउंड कह रहे हैं, CO इज ए कंपाउंड, व्हाई, बिकॉज इन CO the ratio of combination, the ratio of bonding of these atom is fixed, means in CO there is always one C and one O, so it is a compound. Why CO2 is a compound? Because in CO2 there will always be one carbon and 2 oxygen, so it is the, बोलो क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, so it is a compound, इसलिए कंपाउंड है। तो इसलिए हमने लिखा है इन द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, और इनके बीच बेटा बॉन्ड तो बन ही गया, C और O के बीच बॉन्ड बना है, C और O के बीच बेटा क्या बॉन्ड बना, क्या बन गया, बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग के बारे में भी आगे आपको बता दिया जाएगा। सो इट इज ए कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? तो कंपाउंड बेटा कौन हुआ, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट आर कॉल्ड एज द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर के अंदर अभी हमने आपको बता ही दिया। देखो ऐसा क्यों लिखा है हमने 2:16, देखो अभी आपको बता दे बेटा, H के बारे में आपको पीछे सिखाया था ना हमने, H को रिप्रेजेंट 1 1 से करते हैं, मतलब 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 1 बेटा इसका क्या है, दैट इज द मास नंबर। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे बताओ, एटॉमिक नंबर क्या है 8 और ये 16। हमने आपको बताया था ना पीछे कि एनी ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम कहेंगे ना कि एटॉमिक नंबर 8 है, दैट इज ऑलवेज बी ऑक्सीजन, वो हमेशा O ही होगा। अब क्या किया, जैसे वाटर है बेटा, वाटर के अंदर H2O इसका फार्मूला बेटा। अब जो मास है देखो ऊपर जो लिखते हैं, दैट इज द मास नंबर, मास नंबर ऑफ H इज 1, मास नंबर ऑफ O इज 16। तो अब होगा क्या कि 2 H है तो एक H का मास बेटा 1 है, तो 2 H का मास बेटा क्या होगा, दैट इज 2। एक ही O है बेटा वाटर के अंदर, O का मास 16, तो 2:16, दैट इज द वे। तो ये बेटा हमने रेशियो ली है वेट की, दैट इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ वेट। रेशियो ऑफ बेटा किस चीज की, वेट। तो जब भी वाटर बनेगा तो उसके अंदर बेटा हमेशा ही 2, जो इसका वेट है 2 ग्राम, इसका जो वेट अगर हम लेते हैं तो ऑक्सीजन बेटा 16 ग्राम जब आप लेंगे, इस रेशियो में जब हम इनको कंबाइन करेंगे, सो व्हाट इज द सिंपल रेशियो, 2 1 2, 2 8 16, 1:8 रेशियो। तो आगे हमने यही लिखा है 2:16 या 1:8 बाय वेट। तो मींस वाटर कैसे बना, water contain H and O atom in the fixed ratio, that ratio here is the 2:16 or is the 1:8 by weight। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद जो आपके कंपाउंड होता है बेटा, उस कंपाउंड को हमेशा ही कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एक बेटा फिक्स्ड फार्मूला भी होगा। कंपाउंड का हमेशा कोई ना कोई फार्मूला ही होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का बेटा फार्मूला क्या होता है, H2O, that is the formula, means the compound is always described by a formula and that formula is made from the symbols of the atom in it। जैसे हमने फार्मूला लिखा तो बेटा हमने H ही लिखा है ना, पूरी स्पेलिंग तो नहीं लिखी ना, HYDROGEN, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग नहीं लिखी, उसके जो सिंबल ही है उन्हीं को यूज किया है। सो द कंपाउंड इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ द फार्मूला एंड इट इज मेड फ्रॉम द सिंबल्स ऑफ द एटम इन इट, और उसके अंदर जो सिंबल है वही यूज किए जाएंगे उस फार्मूले को लिखते वक्त। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दैट में द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट में द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा कौन होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द रॉक, द मिनरल्स, द अर्थ। अर्थ के अंदर आपके जो आपके डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वहां से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द रॉक्स, मिनरल्स, अर्थ। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन सॉल्ट NaCl हमने कहां से लिया, ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स से हमने लिया। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, कहां से लिया, नॉन लिविंग थिंग्स से। वॉशिंग सोडा, मींस एवरीथिंग these compounds are generally been obtained from the non-living things. Organic compounds are those compounds which are obtained from the living things like the plants or the animals. These called as the organic compounds, like the proteins which are present in the plant body, which are present in our body. These are the proteins. आप इसको आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसाइज की जा सकती है, वो एक अलग बात। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर्टिफिशियली भी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की जा सकती है, वो बेटा दैट इज अ डिफरेंट इशू,
That is a different issue. कि these organic compounds can also be synthesized in the laboratory by the human beings. Human beings इनको prepare कर सकते हैं. बात वो नहीं, बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन है, जनरली उसका बेसिक ओरिजिन क्या है. तो बेसिक ओरिजिन क्या है कि द कंपाउंड्स, द substance which are obtained from the living things, plants or the animals, come in the category of the organic compound, like the protein, carbohydrates, oils, fat, waxes and so on. नेक्स्ट बेटा अब हम देखने जाएंगे प्योर सब्सटेंस के बाद इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, जिसे आप जनरली मिक्सचर भी कहते हैं. तो व्हाट आर द मिक्सचर और द इम्प्योर सब्सटेंस, हमने बेटा आपको पहले बताया भी था कि द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव द डेफिनेट कंपोजिशन. हमने बताया था ना प्योर सब्सटेंस के बारे में कि द सब्सटेंस व्हिच हैव द डेफिनेट कंपोजिशन आर कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, जो एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. While the impure substances also called as a mixture, they are those substances which do not have the definite composition. मींस आपने different element, different compounds को आपस में मिक्स अप कर दिया, उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन हमें किसी भी रेशो में उनको मिला भी दिया. So that is the impure substance. जब भी आप different element को आपस में मिला दें किसी भी रेशो में, in any of the ratio, और उनके बीच कोई बॉन्डिंग ना हो, then it is the mixture. अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट को आपस में मिला दिया, उनके बीच बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन के एक नया सब्सटेंस बन गया, तो वो प्योर सब्सटेंस है बेटा. जैसे सी और ओ को मिला है CO2 बन गया, सो CO2 इज ए कंपाउंड. सी और ओ को मिला है CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ए कंपाउंड. आपने H और O को मिलाया, आपकी H2O बन गया, वाटर बन गया, दैट इज ए कंपाउंड. लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, H2 इज ए गैस, O2 इज ए गैस, नाइट्रोजन इज ए गैस, आपने इनको आपस में मिक्सअप कर दिया, इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हुई. मींस किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस एज सच प्रेजेंट है H2 की फॉर्म में ही, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे अपनी एयर के अंदर कितनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ए मिक्सचर. वो आपका मिक्सचर है बेटा, वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उन डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच, डिफरेंट एलिमेंट के बीच, डिफरेंट आपके कंपाउंड्स के बीच कोई रिएक्शन नहीं हुई, जस्ट आपने उनको मिक्सअप कर दिया, दैट इज द इम्प्योर सब्सटेंस. सो द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव द डेफिनेट कंपोजिशन और कॉल्ड एज द इम्प्योर सब्सटेंसेस की एक डेफिनेशन और भी आप लिख सकते हैं. वो क्या लिख सकते हैं आप दूसरी डेफिनेशन कि द substances which are formed by combining, हम किनको कंबाइन करें, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, which are formed by combining two or more elements or two or more compounds in any ratio without undergoing any reaction, without undergoing any bonding, that called as the mixture. आप उसे बेटा मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बताएं, ए मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर. बेटा ये जरूर ध्यान रखना, हम बार बार इसको प्रेशराइज करें, डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन. एनी रिएक्शन नहीं होने का मतलब कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन होगी तभी तो बॉन्ड बनेगी, रिएक्शन होगी तभी तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे. तो मींस नो बॉन्डिंग means just mix up कर दिया आपने उनको. So now that is a mixture. तो mixture contain the different substances. These different substances may be the element, may be the compound. तो आप different element को आपस में मिला दें, different compound को आपस में मिला दें, लेकिन उनके बीच bonding ना हो, further bonding ना हो. For example, this is a mixture. देखो बेटा हमने मिक्सचर लिया, इसमें हमने क्या क्या लिया, देखो आयरन पाउडर हमने ले लिया, देखो आयरन पाउडर, हमने सल्फर लिया, इनको जस्ट मिक्सअप कर दिया बेटा, आपने मिक्सअप कर दिया, हमने इनको मिक्स कर दिया, इनके बीच अभी हमने कोई रिएक्शन नहीं की है. सो दैट इज द मिक्सचर. तो जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आयरन पाउडर सल्फर लिया, इनको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं बाय द सिंपल सेपरेशन टेक्निक्स. कुछ सिंपल सेपरेशन टेक्निक होते हैं, उससे आप इनको अलग कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या मेन चीज थी, कंपाउंड के अंदर जैसे H2O है, उसके अंदर से आप H और O को अलग नहीं कर सकते. आपने H और O को अलग कर दिया तो मींस H2O नहीं रहा, वो डिकम्पोज हो गया है. कुछ आई बेटा बात समझ में. तो मींस जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमने बेटा क्या क्या चीज ली है इसमें, फॉर एग्जांपल द आयरन पाउडर एंड द सल्फर. देखो ने मिला दिया, हम आयरन को अलग कर देंगे, सल्फर को अलग कर देंगे, क्योंकि आयरन सल्फर के बीच कोई रिएक्शन तो हुई नहीं, कोई बॉन्डिंग तो हुई नहीं, इन दोनों के मिलाने से कोई नया कंपाउंड तो बना नहीं, तो इन दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं. तो यू कैन सेपरेट देम बाय डिसॉल्विंग द सल्फर इन द मिथाइल बेंजीन एज ए सॉल्वेंट एंड फिल्टरिंग देम फ्रॉम द आयरन. कहने का मतलब जब आप इस मिक्सचर के अंदर क्या डाल देंगे बेटा, मिथाइल बेंजीन एक सॉल्वेंट होता है, ये कंपाउंड होता है. इसकी स्ट्रक्चर भी देखो थोड़ा सा हम आपको बना दे, वैसे आपके सिलेबस के अंदर कभी आगे काम आ सकती है. जैसे ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे हम बना दें, और इसके ऊपर अगर हम बेटा एक CH3 ग्रुप लगा दें, दैट इज कॉल्ड एज द मिथाइल बेंजीन. ये मिथाइल ग्रुप होता है, नीचे बेंजीन है, सो इट इज कॉल्ड एज द मिथाइल बेंजीन. ये एक लिक्विड होता है, एक सॉल्वेंट है. ये हमने क्या किया, जो बीकर था या जो आपके पास ये पेट्री डिश है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना गिलास सेपरेटस, इसको पेट्री डिश बोलते हैं, पेट्री डिश, जिसके अंदर हमने ये सल्फर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है,
और जो ब्लैक ब्लैक बीच में सेंटर दिख रहा है दैट इज द आयरन पाउडर। इसके अंदर आपने मिथाइल बेंजीन डाल दिया, देखो मिथाइल बेंजीन इज ए लिक्विड, आपको इसमें डाला और आपने इसको शेक किया। शेक करने के बाद क्या होगा, जो सल्फर है गेट डिसोल्व, और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आप देखो एक फनल लगा दें, देखो इस टाइप से सेपरेटिंग फनल, और ये ऊपर से सॉल्वेंट आप इसमें डाल देंगे, नीचे आप एक बीकर रखेंगे, बीच में बेटा आप एक फिल्टर पेपर भी लगा देंगे, यहाँ पे फिल्टर पेपर, देखो यहाँ पे फिल्टर पेपर, और ये फनल है, क्या है बेटा ये फनल। और फिर बेटा आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सेपरेट कर लें। नीचे तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे डिसोल्व होके, बेटा इसके अंदर तो सल्फर आ गया, बेटा क्या आ गया यहाँ पे सल्फर, और ऊपर कौन बच जाएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर बेटा आयरन बच जाएगा, यहाँ पे आयरन। तो इस टाइप से सिंपल टेक्निक से आप इन दोनों को अलग कर पाए, सो इट इज अ मिक्सचर। अगर आप अलग नहीं कर पाते, आप अलग किसी ना किसी टेक्निक से तो अलग करेंगे। मींस अलग कब नहीं कर पाते, अगर आयरन सल्फर के बीच रिएक्शन हो जाती, एक नया कंपाउंड बन जाता, फॉर एग्जांपल FeS बन जाता, फिर आप क्या करते, FeS बन जाता, तो आप क्या करते, FeS बन जाए तो आप उसको फिर सिंपल इस टाइप से अलग नहीं कर पाएंगे। अभी हम आपको वो चीज बताते भी हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें डायग्राम में देखें हमने क्या किया, इफ यू हीट, हमने आयरन और सल्फर लिया था बेटा, अभी पेटी डिश में लिया था ना, ये पेटी डिश में आयरन और सल्फर। फिर हमने क्या किया, इफ यू हीट द एंड ऑफ द metal rod in a Bunsen burner and push it into the mixture, that mixture is the iron and the sulfur mixture। बेटा कौन है इसके अंदर, आयरन और सल्फर का मिक्सचर था। रिएक्शन हो गई, मिक्सचर स्टार्ट ग्लोइंग, वो ग्लो कर गया, कंपाउंड बन गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, एक ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज द आयरन सल्फाइड, FeS बन गया बेटा, यहाँ पे कौन बन गया, FeS। It contains the iron and the sulfur atom. Now if you will add the methyl benzene, हमने बताया था ना मिथाइल बेंजीन अगर ऐड करेंगे it will not dissolve, क्योंकि वो बात तब की थी जब हमने आयरन और सल्फर को हीट नहीं किया था, उनके बीच बेटा हमने कोई रिएक्शन नहीं की थी। लेकिन अब हमने रिएक्शन कर दी, आयरन और सल्फर बन गया, क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, FeS बन गया। अब ये आयरन और सल्फर अलग नहीं है, तो अब आप इसको मिथाइल बेंजीन से, अब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अब ये कंपाउंड बन चुका है बेटा, कौन बन चुका है, दैट इज द कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या आ गया, जो सिंपल अभी हमने यहाँ पे सीखा, हमने ये सीखा कि जो आपके मिक्सचर होता है उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर, वो आपस में बॉन्डेड नहीं होते, सो वी कैन यूजली सेपरेट देम, क्वाइट इजिली, इसलिए हम इसको बड़ी आराम से अलग भी कर पाए थे। नाउ द टाइप ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंस, आपके इम्प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, मिक्सचर कितने टाइप के हो सकते हैं, मिक्सचर में भी द होमोजेनियस मिक्सचर जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और दैट में द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वो दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। नाम से पता चलता है होमो, होमो का मतलब सेम, जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम हो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, और जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा ना हो उसे आप नॉन होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे या हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। बट इट मींस कि द सब्सटेंस व्हिच हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर आर कॉल्ड एज द होमोजेनियस मिक्सचर। देखो इसकी सेंस क्या है बेटा बता दे, मान लीजिए बेटा आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान देना, आपने इसके अंदर बेटा शुगर ले ली या ग्लूकोज ले लिया बेटा, फॉर एग्जांपल C6H12O6, दैट इज द फार्मूला। हमने बताया था ना कोई जो कंपाउंड होता है उसका कोई फार्मूला भी होता है, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल फार्मूला, तो हमेशा हर कंपाउंड का एक फार्मूला होता है। जैसे ये ग्लूकोज है, इसका एक फार्मूला बेटा C6H12O6, और इसमें बेटा हमने वाटर डाल दिया बाहर से, तो वाटर डाला तो उसका भी एक फार्मूला है, दैट इज H2O। तो हर कंपाउंड को एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने इसको मिक्सअप कर दिया, इसको आपने डिसोल्व कर दिया, तो आपने क्या देखा कि चाहे आप ऊपर वाली लेयर है, देखो जब आपने इसको डिसोल्व कर दिया, देखो इस टाइप से डिसोल्व करने के बाद ऊपर से नीचे आप कहीं से भी टेस्ट करना, टेस्ट एक जैसा मिलेगा। कंपोजिशन जो होगी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे तक इनकी जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। तो ऐसे मिक्सचर को आप कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर बेटा क्यों है ये, क्योंकि आपने एक से ज्यादा कंपाउंड को मिलाया, ग्लूकोज इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड, इनको आपने आपस में मिक्सअप कर दिया, मिला दिया, और इनके बीच कोई बॉन्डिंग भी नहीं हो, दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर। क्या ग्लूकोज और वाटर के बीच कोई बॉन्ड बना, नो, सो इट इज ए मिक्सचर। लेकिन ये होमोजेनियस क्यों है, बिकॉज दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इस कंटेनर में बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक कंपोजिशन एक जैसी है, वाटर मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट दैट बीकर, सो इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, फॉर एग्जांपल सी, वाटर, गैसोलीन, ब्रास, ये सारे के सारे आपके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। एलॉय, एलॉय आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल हमने जो ब्रास लिखा है, ब्रॉन्ज अगर हम लिखते हैं, ये आपके एलॉय होते हैं। एलॉय मींस अगर आप एक से ज्यादा मेटल को आपस में मिला देते हैं, तो मेटल्स को आपस में मिलाया, उनके बीच रिएक्शन नहीं हुई,
मेटल को आपने पहले मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में उनको मिला दिया, एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाएं या ना मिलाएं, तो लेकिन उनके बीच रिएक्शन नहीं हुई, इसीलिए वो मिक्सचर है। इसलिए बेटा क्या है, मिक्सचर है। दो से ज्यादा एलिमेंट, जो दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो से ज्यादा कंपाउंड को अगर आप आपस में मिला दें और मिलाने के बीच उनके बीच रिएक्शन ना हो तो वो मिक्सचर है। तो बेटा वो कौन होगा, मिक्सचर होगा। Now the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is the mixture which do not have the same composition throughout. For example, बेटा मान लीजिए आपके घर में मिट्टी है, सैंड है, आप उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर आप सोल्ट ले लें, आप उनको मिला दें, ऐसे देखो ऐसे मिक्सअप कर दें। मिलाने से क्या थ्रू आउट वो एक जैसा होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा? नो, नहीं बनेगा। तो मीन्स कहने का मतलब गन पाउडर लिया, इट इज ए मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडा वाटर। आपने क्या किया, इनको मिला दिया आपस में, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक पूरे कंटेनर में ऊपर से नीचे तक इनकी अमाउंट सेम नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि कंटेनर में ऊपर आपको गन पाउडर, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट ये सारा जितना ऊपर है उससे थोड़ी नीचे भी उतनी अमाउंट है, उससे नीचे भी, मीन्स एवरी लेयर के अंदर, हर एक लेयर के अंदर जो कंटेनर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर की देखो जो ऊपर इस लेयर, ये लेयर, ये लेयर, दीज आर डिफरेंट लेयर, देखो ऊपर से नीचे तक होगा ना बेटा, हर लेयर के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो सेम नहीं होगी, तभी आप उसको कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तभी आप बेटा उसको क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट बेटा अब हम लेते हैं एटम और मोलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले एटम। एटम बेटा क्या है, साइड में हमने मोलिक्यूल की डेफिनेशन भी लिख दी थी आपके लिए। व्हाट इज द एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वो छोटे से छोटा पार्टिकल, देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चलेगी ना तो उसमें हमेशा एटम पार्टिसिपेट करता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय केमिकल मीन। वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एन एटम। और एटम का अपना खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, ना भी हो। जैसे हमने आपको पीछे पीरियोडिक टेबल में बताया था ना बेटा, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट थे, जो बिल्कुल देखो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम जो राइट में दिखती है जो लाइन, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, देखिए थे ना बेटा आपने, ग्रुप नंबर 18 होता है बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट वाला। हीलियम सबसे ऊपर दिखता है, बिल्कुल लास्ट जो लाइन होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, देखो ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऑक्सीजन है, जैसे इससे पहले अगर आप ग्रुप नंबर 17 देखेंगे बेटा, ग्रुप नंबर 17 उसमें आप क्या देखेंगे कि आपके कौन मिलेगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपके फ्लोरीन मिलेगा बेटा। लेकिन ये फ्लोरीन जो F2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, नियोन Ne की ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है बेटा। वैसे तो Cl इज द एटम, लेकिन नेचर में जो क्लोरीन मिलती है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द Cl, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द Cl2, मोलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब एक से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएं, एक से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मोलिक्यूल बन जाता है बेटा। क्या बन गया, मोलिक्यूल। अकेली चीज को क्या कहते हैं, एटम। एक से ज्यादा एटम आपस में मिल जाए दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। और उस कंपाउंड के अंदर काफी सारे मोलिक्यूल्स होते हैं, एक मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल एंड सो ऑन, लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अब हम देखेंगे बेटा टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगी, O2 इज ए मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलेगी, N2 इज ए मॉलिक्यूल। CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज ए मॉलिक्यूल, तो एंड सो ऑन। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दैट में द होमो एटॉमिक, होमो का मतलब बेटा सेम, सेम एटम वाला मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब बेटा मैंने क्या बताया, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, सेम एटम्स हो और फिर मॉलिक्यूल बन जाए तो आप उसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो द मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और कॉल्ड एज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, H2 कैसे बना, 2 H से मिलके। O2 ऑक्सीजन किससे बना, 2 O से मिलके। Cl2 कैसे बना, 2 Cl से मिलके। ओजोन O3 होती है, ओजोन 3 O से मिलके बना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेटा ये कहलाते हैं हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हिट्रो का मतलब डिफरेंट, हिट्रो का मतलब डिफरेंट या नॉट सेम। तो डिफरेंट एटम्स मिल जाएं और फिर मॉलिक्यूल बन जाए तो कहते हैं उसे हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द हिट्रो एटॉमिक। बेटा नीचे हिट्रो कर लेंगे आप यहाँ पे, that is called as the heteroatomic molecules.
एग्जाम्पल HCl, इसमें देखो एक H है, एक Cl है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, CO2, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, अमोनिया, 1 नाइट्रोजन, 3 आपके हाइड्रोजन, वाटर, वाटर के अंदर बेटा क्या होगा, एक H, 2 H होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। सो दीज आर दी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपको एक से ज्यादा एटम दिखाई दे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा आपके जो होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, दे में भी डाइएटॉमिक, वो डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं अगर उसमें सिर्फ 2 ही एटम हो। सो द मॉलिक्यूल वेदर इट इज द होमोएटॉमिक और द हेटेरोएटॉमिक, चाहे आपका वो होमो है चाहे हेटेरोएटॉमिक है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही एटम हो, 2 एटम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब 2, डाई का मतलब बेटा क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2। सो 2 एटम्स वाले मॉलिक्यूल को डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ द 2 atoms, which are made up of the 2 atom, and these 2 atom may be the same, these 2 atom may be the different. सेम कैसे, जैसे आपको अभी ऊपर दिख रहा है H2, 2 same atom, 2 same hydrogen atom, in O2, 2 same oxygen atom, in Cl2, the 2 same Cl atom, the HCl, the 2 different atoms। हैं तो 2 ही एटम ना, एटम 2 होने चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। द मॉलिक्यूल विल बी द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट वन द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई का मतलब 3, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके 3 एटम्स हो, दैट इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और 3 जो एटम है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ द 3 एटम, दीस 3 एटम में बी द सेम और द डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइएटॉमिक। तो आप बेटा यहाँ पे ट्राई कर लेंगे नीचे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ओजोन, all the 3 O are all the 3 atoms are same, O एटम है तीनों के तीनों ओजोन के अंदर। इन CO2 1 C, एक डिफरेंट भी आ गया, 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। सो दैट इज द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। टोटल एटम्स आर 3, in ozone there are the 3 oxygen atom, in CO2 1 carbon 2 oxygen atom, total 3 atoms, so called as the triatomic molecules. Next the tetraatomic molecule. Similarly in the same way tetra means 4, so the molecules which contains the 4, tetra means 4 atom wale molecules ko aap kya kahenge, tetraatomic molecules. So the molecule which are made up of the 4 atoms, and these 4 atom may be the same, may be the different, aap usse kehte हैं बेटा टेट्रा। नीचे आप ये स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे डाई लिखा रह गया गलती से, दैट इज द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल आर फास्फोरस, फास्फोरस जैसे आपसे बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आप कहेंगे द फॉर्म ऑफ द O2। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आप कहेंगे द फॉर्म ऑफ द आपकी N2। सिमिलरली आपसे पूछा जाए फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ द P4। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बेटा सल्फर, द सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द S8। 8 सल्फर होते हैं उसमें, S8 की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर बेटा, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो मींस फास्फोरस P4 की फॉर्म में कितने एटम है, 4 है, चारों सेम है। अभी मैंने बताया द मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ द 4 एटम, दीस 4 एटम इज द सेम और द डिफरेंट। सेम एटम वाला एग्जांपल P4, डिफरेंट है अमोनिया में, NH3 इज द अमोनिया, NH3 इज द अमोनिया, जिसमें एक नाइट्रोजन है बेटा, 3 H है, सो दैट इज द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और 2 या 2 से ज्यादा जितने भी होते हैं आपके, इनको आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। 2 वाले को डाई, 2 से ज्यादा आपके पॉलीएटॉमिक, पॉली का मतलब मैनी होता है बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मैनी एटम वाले मॉलिक्यूल्स, उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप कह देते हैं। नेक्स्ट बेटा एटोमिसिटी, अभी आपने देखा ना डिफरेंट जो मॉलिक्यूल थे, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, इन सभी मॉलिक्यूल्स में कुछ एटम तो थे, वेदर दिस नंबर ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। सो द नंबर ऑफ द एटम, the number of the atom, the total number of the atom present in a molecule is called its atomicity, वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डाइएटॉमिक है, क्यों है, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला बेटा H2 होता है और इसके अंदर 2 H है, सो इट इज द डाइएटॉमिक, देयर एटोमिसिटी इज 2। The atomicity of oxygen is 3, it is a triatomic molecule because their formula is O3, because the 3 O atom are present, so it is a triatomic molecule, it is a triatomic molecule। ठीक हो गया बेटा। तो एक चीज और बता दे, फॉर एग्जांपल HCl, बोलो ये कैसा है, इसकी एटोमिसिटी बेटा क्या है, इसकी एटोमिसिटी बेटा 2 है, their atomicity is 2, why 2, because it contains 2 atom, so means the total number of atom present in a molecule called its atomicity, whether these 2 atom are same or the different. In the previous cases, in the H2 and the ozone, the atom are same, while in case of the HCl, the 2 atom are different, but the atomicity will 2 because the atoms are 2, 1 H 1 Cl। for example कोई आपसे पूछे बेटा H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसे आप किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, जिसे आप ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, इसके बेटा ये डिफरेंट नाम है, ये आपके आगे यूज होगा बेटा। तो एक आधे फार्मूले आपको याद आने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसे कह देते हैं,
इसे आप ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसी का बेटा नाम है। तो इसकी का एटोमिसिटी बेटा कितनी है, देखो 2H, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 + 1 5 और 2 7, देयर एटोमिसिटी 7, इसकी एटोमिसिटी 7 है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा साइन ऑफ द केमिकल चेंज, मींस कोई रिएक्शन चल पड़ी, जैसे अभी हमने पीछे बताया था ना कि आपने आयरन पाउडर लिया, सल्फर पाउडर लिया, उनको मिला दिया, थोड़ा हीट किया, रिएक्शन हो गई, FeS बन गया। तो मींस हमें कैसे पता चले कि रिएक्शन हो गई, व्हाट आर द साइंस ऑफ द केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज हम कब कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट इज द केमिकल चेंज और द केमिकल रिएक्शन, द साइंस ऑफ ए केमिकल चेंज। तो बेटा जैसे आपकी बुक में भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, द साइंस ऑफ द केमिकल चेंज मींस व्हेन यू हीट ए मिक्सचर ऑफ, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, व्हेन यू हीट ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। Means why we are saying that the chemical change takes place, why we are saying that the chemical reaction takes place, we are saying here the chemical change takes place because the bond formation occur, the bond formation occur in between the iron and the sulfur atom। अगर जिन एटम्स को, जिन एलिमेंट्स को आपस में आप मिलाएं, जिन कंपाउंड्स को आपस में मिला दें, उनके बीच में नए बॉन्ड बन जाएं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, कि केमिकल रिएक्शन अकर्स। इफ द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, न्यू बॉन्डिंग अकर्स between the elements or the compound which we are adding in a container, जो कंटेनर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, उनके बीच में नए बॉन्ड बन गए, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई, नए कंपाउंड बन गए, केमिकल रिएक्शन हो गई। किसी, जब आपने उनको मिलाया, हीट लॉस्ट हो गई, हीट रिलीज हो गई, हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो मींस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो मींस बेसिक चीज के नया कंपाउंड बन जाए, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई। मींस अगर आपने किन्हीं दो चीजों को मिलाया और मिलाने के बाद आपने क्या देखा, वन और न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस बन गए, तो बेटा क्या हो गई, केमिकल चेंज है। वो क्या है, केमिकल चेंज। और जब भी कोई केमिकल चेंज होता है बेटा, आप उसको हमेशा ही रिप्रेजेंट करते हैं by a word that is called as the equation। जब भी दो चीजों को आपने मिलाया, फॉर एग्जांपल आयरन प्लस सल्फर, बेटा आपने इसको मिला दिया, उसके बाद देखो आपने एरो का साइन लगाया, फिर कोई प्रोडक्ट बन गया, देखो FeS बन गया बेटा। ये कौन बना, FeS। FeS लिखते ही इसको ऐसे हैं, आयरन 2 सल्फाइड, ये बन गया। तो जो आपने अभी लिख दिया ना बेटा, देखो ये क्या लिखा, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को बेटा आप S से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जो कंपाउंड बन गया ना बेटा, वो आपका FeS बन गया ऐसे। तो नाउ दैट इज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में आप क्या करते हैं, the atom of the element or the compound which are reacting with each other are called as the reactant। बेटा आप इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। देखो जो आपस में रिएक्ट कर गए ना, जैसे आयरन और सल्फर के बीच बेटा रिएक्शन हो गई, तो ऐसे सब्सटेंस को आप रिएक्टेंट कहते हैं। सो द सब्सटेंसेस which may be the element, which may be the compound, which react with each other, which bonded with each other, are called as the reactant, are called as the reactant। And the new substance which is formed by the reaction between the reactant is called as a product, उसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट बेटा कौन होता है, कि the new substance which is formed by combining, by reacting, by formation of the new bond between the combining reactant molecule is called as the product। आप उसे बेटा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे बेटा जो प्लस का साइन होता है, प्लस मींस रिएक्ट, यहाँ पे बेटा जो हमने प्लस का साइन लगाया ना, देखो ये ऊपर, देखो ये प्लस, प्लस क्या मतलब है इसका, आयरन प्लस सल्फर मींस रिएक्ट्स, ये आपस में अब रिएक्ट कर गए। आगे देखो एरो का जो साइन लगाया, मींस टू फॉर्म, मींस एरो का मतलब अब आगे जाके क्या बनेगा, क्या बना, FeS। तो एरो रिप्रेजेंट करता है टू फॉर्म, के आगे कुछ बना। तो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे बेटा, उनमें आप ध्यान रखना कि प्लस का मतलब आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एरो। प्लस मींस रिएक्ट्स, एरो मींस टू फॉर्म, और बनेगा क्या, न्यू सब्सटेंस। और न्यू सब्सटेंस जो बने उन्हें आप प्रोडक्ट कहते हैं, उन्हें आप बेटा क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमने पीछे देखा था, जब आयरन और सल्फर के बीच रिएक्शन हुई, तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना था, दैट इज द आयरन सल्फाइड। उसके बाद बेटा जब भी ये रिएक्शन चलती है, जब भी केमिकल रिएक्शन चलती है, तो एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान आपको रखनी चाहिए कि इनिशियली किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए initially always some amount of energy is given from the outside to start a reaction। देखो ये हमने लिखा है कि energy was needed to start of the reaction between the iron and the sulfur। देखो हर एक रिएक्शन को चलाने के लिए, हर एक केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए आपको शुरू में तो हीट देनी ही पड़ती है।
अगर आप बाहर से वो हीट नहीं देंगे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। और जो रिएक्शन चलाने के लिए बाहर से बेटा जो आप हीट देते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं ताकि रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो जाए, जो कंपाउंड जो एलिमेंट आपने लिए हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाए, उनके बीच में रिएक्शन हो जाए। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने बाहर से प्रोवाइड की, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये आप जरूर ध्यान रखना। तो बेटा क्या ध्यान रखा कि क्या केमिकल रिएक्शन अपने आप हो जाती है और समथिंग एनर्जी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। आप क्या कहेंगे? समथिंग एनर्जी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। आप कहेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एनर्जी? यू से दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। या आपसे पूछ लें हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कहेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, आपने थोड़ी एनर्जी दी, रिएक्शन नहीं हुई, फिर थोड़ी एनर्जी दी, रिएक्शन नहीं हुई, फिर थोड़ी सी एनर्जी दी, अब रिएक्शन हो गई। नाउ दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which is required to cause a reaction between the reacted molecules is called as the activation energy। क्लियर हो गया बेटा? तो मींस उसके बाद क्या होगा, आपने एनर्जी दे दी, रिएक्शन चल पड़ी। जब रिएक्शन चलती है ना बेटा, और जब नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे ऊपर आयरन सल्फाइड बना, तो कुछ रिएक्शन में तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट बनने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और कुछ में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में बेटा, आपने एनर्जी दे दी 100 जूल फॉर एग्जाम्पल, वो तो देनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 100 जूल आपने दे दी, तो 100 जूल जो एनर्जी थी उससे रिएक्शन चल पड़ी। जब रिएक्शन चली उसके बाद बेटा हमेशा ही एनर्जी निकलनी होती है। जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलेगी? हो सकता है जो 100 जूल हमने दी, क्या पता इससे ज्यादा निकल जाए, 120 निकल जाए, हो सकता है इससे कम निकल जाए, 180 निकल जाए। देखो ध्यान रखो, बाहर से देने वाली एनर्जी एक्टिवेशन, फॉर एग्जांपल 100 जूल दे दी और रिएक्शन चल पड़ी, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट बनने के दौरान फिर हमेशा एनर्जी बेटा निकलेगी कितनी निकली? फॉर एग्जांपल 120 जूल एनर्जी। देखो मैंने ऊपर एरो लगाया, मींस एनर्जी बाहर निकल गई। फॉर एग्जांपल 80 जूल निकल गई। हो सकता है जितनी ली बाहर से, ये बाहर से ली थी 100 जूल, निकली कितनी? उससे भी ज्यादा। तो उससे भी ज्यादा निकली तो आप उसे बेटा कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक, THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर जितनी आपने दी थी 100 जूल दी, निकली उससे कम 80 निकली, कुछ तो उसके अंदर ही रह गई, प्रोडक्ट के अंदर ही रह गई 20, तो उसे कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब एंट्री, मींस कुछ रह गई उसी के अंदर रह गई, सारी नहीं निकली, उससे कम निकली, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये दो वर्ड जरूर ध्यान रखें। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 जो आपको लिखा दिख रहा है, इसमें आपने क्या देखा? एनर्जी इज टेकन इन, जो हमने लिखा था ना बेटा, ये बोल्ड में दिख रहा है कि एनर्जी इज टेकन इन और गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब क्या था? टेकन इन और द गिवन आउट। गिवन आउट का मतलब ये था कि ली 100 और निकल गई 120, उसे कहते हैं गिवन आउट। क्लियर हो गया बेटा? गिवन आउट का मतलब ये नहीं निकल गई, शुरू में तो बेटा लेनी ही पड़ेगी, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद जो ये वर्ड लिखा है ना बेटा, गिवन आउट 100 ली, निकल गई 120, दैट इज द मीनिंग ऑफ गिवन आउट। ली 100 और कुछ निकल गई 80, कुछ तो अंदर ही रह गई, दैट इज कॉल्ड एज द टेकन इन। जो ली थी टोटल सारी बाहर नहीं निकाली, कुछ ना कुछ 20 तो अभी अंदर रह गई ना, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेकन इन, कुछ अंदर रह गई। सो एनर्जी इज टेकन इन और द गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये इन दो शब्दों का बेटा मतलब है, इनको प्रॉपरली आप याद कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो ये कुछ वर्ड थे, बेसिक वर्ड थे, इन सभी की सेंस आपको जरूर याद होनी चाहिए। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3, कब कहेंगे वो केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज आर यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन और सल्फर के बीच बेटा रिएक्शन हो गए, ऐसा नहीं कि आप इसको ठंडा कर दें, दोबारा से आयरन और सल्फर दोनों अलग हो गए और हमें Fe और S मिल गया। नो, ऐसा नहीं होगा। मींस जो रिएक्शन होती हैं दे आर यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स। हम इनको रिवर्स बेटा नहीं कर सकते, लेकिन हम FeS से दोबारा से आयरन और सल्फर बना जरूर सकते हैं, लेकिन उसका पाथ अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा। मींस ऐसा नहीं कि वहां पे हीट किया, यहाँ पे कूल कर दें और आयरन सल्फर मिल गया। नो, ऐसा आप नहीं कर सकते। मींस सिमिलरली आप ऐसे रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप आयरन सल्फाइड से there are some other techniques with the help of which you can prepare the iron and the sulfur। आप उसको प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। मींस ए केमिकल चेंज इज यूजुअली कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बार बार ये वर्ड भी यूज कर रहा था, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी आप कह देते हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना यहां तक?
आपने देखा होगा घर में आपके पास दूध होता है, दूध में आप शाम को थोड़ा खट्टा लगा देते हैं, सुबह तक दही बन गई, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। आप दोबारा से दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल चेंज है। द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड इज ए केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ द आयरन, आपके पास आपने देखा होगा ना, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें आयरन बाहर रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर आपने देखा होगा ब्राउनिश सब्सटेंस उसके ऊपर जम गया, यानी लोहे को जंग लग गया। Fe2O3.XH2O फार्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3.XH2O। आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, आयरन जब इंप्यूरिटीज के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें कांटेक्ट में आने के बाद आयरन का रस्ट लग गया, रस्ट का फार्मूला Fe2O3.XH2O, तो यानी वो बन गया। क्या आप Fe2O3.XH2 को दोबारा से आप Fe+O2+ वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन किसी और टेक्निक से, किसी और मेथड से आप Fe2O3 से आयरन प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं, वो एक अलग इशू है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, जो आपका केमिकल चेंज होता है वो फिजिकल चेंज से डिफरेंट होता है। अभी हमने बता भी दिया, न्यू प्रोडक्ट बने तो केमिकल चेंज, दो चीजों को मिला दें, न्यू प्रोडक्ट नहीं बने तो वो बेटा फिजिकल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल when you mix the iron powder with the sulfur, it is a physical change, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस बेटा बना ही नहीं, तो ये एक फिजिकल चेंज है। और क्योंकि फिर आप, जैसे हमने पीछे आपको समझाया था, मिथाइल बेंजीन आप डाल दें और जो ये आपका आयरन है और जो सल्फर है, सल्फर मिथाइल बेंजीन में डिसोल्व हो जाएगा, फिल्टर कर लें, फिल्टर पेपर के ऊपर आयरन रह जाएगा और नीचे बेटा कौन चला जाएगा? सल्फर। आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मींस कैसे प्रूव करें कि इट इज द फिजिकल चेंज? क्योंकि हम इनको सेपरेट कर पाए, आयरन और सल्फर का जो पाउडर है, अगर आप इसको सेपरेट कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं आप इनको? सेपरेट बाय द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, सो दैट मिक्सचर, दैट इज ए मिक्सचर एंड वी आर सेपरेटिंग दीज टू सब्सटेंस, हम दोनों को अलग भी कर पा रहे हैं। तो मींस उन दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, वो आपस में सिर्फ आपने ऐड अप कर रखे हैं, दैट इज द फिजिकल चेंज। तो आयरन और सल्फर को मिलाना एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन फिलिंग है, ये आपने मिथाइल बेंजीन डाला, देखो ये सॉल्यूशन बन गया ऊपर, तो इसमें तो बेटा सल्फर डिसोल्व हो गया, नीचे जो आयरन है वो तो डिसोल्व हुआ नहीं, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब जैसे ही आप एक फनल लेंगे, देखो यहाँ पे फनल, और यहाँ पे फिल्टर पेपर बेटा आप लगाएंगे और इसके अंदर आप डालेंगे, तो आपका आयरन तो बेटा ऊपर रह जाएगा और नीचे जो कंटेनर है उसके अंदर बेटा कौन आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास सल्फर आ जाएगा बेटा। इसमें कौन आ जाएगा? सल्फर प्लस मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन फिर आप इवेपोरेट करके उसको अलग आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नो केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग दीज फिजिकल चेंजेस। दीज चेंजेस का मतलब हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, मींस फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस, नया कंपाउंड नहीं बनता। इफ नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बेटा कैसा चेंज है? दैट इज द फिजिकल चेंज। आपसे ये पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अनलाइक केमिकल चेंज, ए फिजिकल चेंज इज यूजुअली इजी टू रिवर्स, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, फिजिकल और द केमिकल चेंज, उनसे रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन है जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपको यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, वाटर इज ए कंपाउंड। व्हाई? क्योंकि जो वाटर है बेटा उसका एक फिक्स्ड फार्मूला होता है, हमने बताया था ना, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स फार्मूला होता है, इन विच द डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। देखो 2:1 रेशियो के अंदर है बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मास की फॉर्म में देखें, मास की फॉर्म में देखें अगर आप इसको, तो बेटा क्या होगा इसके अंदर? H का मास बेटा हमने बताया था ना 2 है, ऑक्सीजन का मास बेटा कितना है? 16, तो 1:8 रेशियो होगी, दैट इज बाय वेट। वाटर के अंदर 1/8 रेशियो है बाय वेट और 2/1 रेशियो है बाय मोल्स, ये बाय मोल्स की फॉर्म है बेटा। तो किसी भी सब्सटेंस को आप कंपाउंड कब कहते हैं? एनी ऑफ द सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज ए कंपाउंड इफ इट कंटेन्स द नंबर ऑफ मोल्स इन द फिक्स्ड रेशियो, इफ इट कंटेन्स द एटम्स in a fixed ratio by weight, that is a compound. So here also in the case of the water, hydrogen is a element, hydrogen एक element है। hydrogen बेटा क्या है? एक element। क्योंकि element की definition आप बता देंगे, क्योंकि because the hydrogen cannot be prepared, cannot be synthesized by some simpler techniques, cannot be synthesized by mixing the protons, neutrons or the electron, it cannot also be broken into the proton, neutrons or the electrons। आप इनको और simpler substance में ना तो break कर सकते, ना ही आप इसको synthesize कर सकते। so it is the element, hydrogen एक element है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इनके बीच डिफरेंस की बातें थी।
गिव द फॉर्मूला फॉर द वाटर, ये आपने बेटा पढ़ाई था, फॉर्मूला फॉर द वाटर इज H2O, फॉर्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर्मूला बेटा देखो इसका तो HCl ही बन गया, और अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3 हो गया। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर एंड द कंपाउंड आयरन सल्फाइड एंड द कंपाउंड आयरन सल्फाइड। देखो बेटा पीछे हमने आपको बता दिया था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम इसकी दे चुके हैं कि जो मिक्सचर अगर हम आयरन और सल्फर के बीच ले एंड कंपाउंड आयरन सल्फाइड, तो व्हाट इट मींस कि जो आयरन और सल्फर जो आपने मिलाया एक कंटेनर के अंदर, देखो आपके पास एक देखो वाच ग्लास, इसमें Fe प्लस आयरन है, दैट इज द फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे कंटेनर में आयरन और सल्फर मिला के बेटा आपने हीट कर दिया था, तो आयरन सल्फाइड बन गया क्योंकि आपने हीट कर दिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट वन इज द मिक्सचर, बिकॉज हियर द iron Fe and the sulfur atom are not bonded with each other, so it is a mixture, while in case of the FeS the iron and sulfur are bonded with each other and they are present in the fixed ratio by weight, और इनके अंदर fixed ratio एक iron है एक sulfur है और FeS बन गया, so that is a compound। तो एक compound क्यों FeS? because in that these two atom iron and sulfur they are present in the fixed ratio by weight, while in the first one case the Fe और जो S है they are present but they are not bonded with each other, so it is the mixture, so it is the mixture। तो नंबर 1 जो हमने बनाया ये बेटा आपका यहाँ पे ये मिक्सचर का एग्जांपल है, मिक्सचर का डायग्राम है, और सेकंड वन बेटा ये आपका कंपाउंड का डायग्राम है, और वो बातें आप लिख देंगे जैसे आपको बताई गई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताया था, लिस्ट द साइन ऑफ द केमिकल चेंज व्हेन यू फ्राई एन एग। देखो सारी बातें आपको बता दी, प्लस साइन आप कब लगाएंगे, एरो का साइन आप कब लगाएंगे, पीछे हमने बताया था। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन, देखो जो मैग्नीशियम है देखो Mg, जब उसको ऑक्सीजन में आप रिएक्ट करते हैं जैसे O2 के साथ, देखो प्लस का साइन क्या था, इसकी सेंस आपको बता दी, टू फॉर्म, एरो का मतलब था MgO बन गया बेटा आपका, यहाँ पे बैलेंस करें इसके आगे 2 लगा दें तो 2 देखो 2 मैग्नीशियम हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म एज ए व्हाइट एश। व्हाट साइंस आर देयर that a chemical change has to takes place, मींस प्लस का मतलब बेटा क्या है, टू रिएक्ट, और इस एरो का मतलब बेटा क्या है, टू फॉर्म। यही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा बताना था, केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन चली है, बिकॉज द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। MgO is a new compound that is formed by mixing the Mg and O2, bonding, new bond formation takes place in between the Mg and O। What do you mean by term plus? प्लस का मतलब बेटा क्या है, टू रिएक्ट, और इस एरो का मतलब बेटा क्या है, टू फॉर्म। बनेंगे क्या, प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, दैट इज द इक्वेशन के अंदर आप ऐसा लिखते हैं। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 6, वो हमने बेटा ऊपर आपकी इक्वेशन लिख दी है, जो हमने लिखा ना 2Mg प्लस O2 एरो का साइन 2MgO, दैट इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन है बेटा, ये क्या है, उस रिएक्शन की इक्वेशन है, तो ये आप लिख देंगे ऐसे। Is it chemical change or the physical change? It is a chemical change because the new compounds are formed, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखे। लेकिन अब नीचे, is it a chemical change or the physical change? Give reason। जो नीचे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, एक गिलास बोतल ब्रेकिंग, बेटा गिलास की बोतल आपने तोड़ दी, तोड़ने के बाद भी बेटा वो गिलास ही है, आफ्टर दैट इट इज अ गिलास, इट इज अ गिलास, सो इट इज द फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इफ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, that will be the chemical change, but during the glass bottle breaking no new compound is formed, so it is a physical change। so इसका रीजन क्या हुआ, because during the glass bottle breaking no new compound is formed, so it is a physical change। in the second one, the duff being baked into the bread in an oven, oven के अंदर जो ब्रेड बन गया है, तो ये क्या है बेटा, ओवन के अंदर जो आपने देखा दैट इज ए केमिकल चेंज, वो आपका बेटा एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नई चीज बन गई, आप उसको दोबारा उस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, सो इट इज ए केमिकल चेंज। जो ब्रेड है उसको आप दोबारा से डफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि इरिवर्सिबल है ये काम, आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, तो इट इज ए केमिकल चेंज। जैसे ऊपर वाली जो बोतल थी ग्लास बोतल ब्रेकिंग, वो टूट गई, फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहली बात नया कंपाउंड नहीं बना, दूसरी बात आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो दो बातें आप लिख सकते हैं, दो बातें लिखना बेटा हर ABC तीनों पार्ट में, रिवर्सिबिलिटी की बात बतानी है और ये बताना है कि नया कंपाउंड बनाया नहीं बना। तो ए पार्ट में क्या लिखेंगे, नो न्यू कंपाउंड इज फाउंड, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, सो इट इज द फिजिकल चेंज। बी पॉइंट में इट इज ए केमिकल चेंज बिकॉज न्यू कंपाउंड इज फाउंड एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सी पॉइंट, वुल बीइंग नीटेड टू फॉर्म ए स्कार्फ, घर में जो स्कार्फ होता है वुल है, बेटा वुल ही तो लिया है आपने, उसको
नीटिंग कर दी उसकी और आपके पास स्कार्फ बन गया। आप स्कार्फ को अलग भी कर सकते, दोबारा से वूल आपके पास आ जाएगा। सो इट इज द फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बेटा नई आपने चीज बनाई है, वूल से स्कार्फ बना दिया, आपके पास धागा है, धागे को देखो ऐसे इकट्ठा इकट्ठा करके आपने उसका रोल बना दिया, तो दैट इज ए रोल। और सिंपल थ्रेड का रोल बनाया, रोल को दोबारा से खोल दिया, दोबारा से फाइन थ्रेड है वो, तो उसमें कोई नई चीज तो नहीं बनी ना, चीज तो वही है। सो इट इज ए फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सो इट इज द फिजिकल चेंज। ए और सी पॉइंट फिजिकल चेंज है, बी पॉइंट आपका केमिकल चेंज है। ओके बेटा, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।